नमस्कार मित्रों, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की बहुप्रतीक्षित फिल्म द वैक्सीन वॉर, जिसका ट्रेलर अभी 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रिलीज किया गया था, उसने रिलीज होने से पूर्व ही धमाका कर दिया है। और ये धमाका भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हो कि फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज किया जाना है, जिसमें अभी काफ़ी समय है, लगभग 1 महीने का समय है। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही अमेरिका में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, जिसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। Indian women are very powerful and the movie just proved it. We feel so much honored and proud. Nari Shakti Zindabad. It's a patriotic movie. We are proud of India. This movie inspired me as an Indian woman to just portray Indian women as Durga, Saraswati, Lakshmi. काफी मुश्किल सब्जेक्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। I really enjoyed it. I'll give 500 out of 100. It's so beautiful. Speechless movies. Speechless. 11 out of 10. Everybody need to watch it, but with fact, loved it. Every woman should see this movie, and I'm very proud being an Indian. Very informative, very impressive, and of course, it projects women empowerment. Excellently done. Very, of course, being a woman, I'm very proud. Woman power, India power. It's a great message. आज वैक्सीन वार पिक्चर देखी, मजा आ गया देख करके। बहुत ही साफ सुथरी और डायलॉग इतने अच्छे है सब इंडियन वुमेन। मित्रों, देखा आपने लोग कितना प्रसन्न है द वैक्सीन वॉर देखकर। विशेष रूप से महिलाओं के मुख पर अलग ही चमक देख सकते हो आप। वो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों की जो टीम थी, उसमें 70% महिलाएं ही थी, यानी 70% महिलाएं थीं। और विवेक जी ने अपनी फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से ये दिखाया है। आप सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। ICMR is oldest medical research agencies of the world. When we studied, we realized that making the vaccine was, of course, one of the greatest achievements. The work on vaccine started in the first week of February. Lockdown came on the 22nd of March. That is the vision of our leadership. We made the fastest indigenous vaccine in almost 7 months. It's no small feat. The only problem is that they work inside the labs. More than 70% of them were women. And the kind of women, if you come to West, they won't even call them empowered because they are cooking food for their family. And then going to the BSL-4 lab, which is the most advanced lab in the world. And then they are making vaccines. And some of them are the world's best scientists. Wuhan's BSL-4 lab was made in 2017. India's lab was made in 2011. But nobody knows about this great achievement of India, that you are one of the 6 countries in the world which has WHO approved BSL-4 lab. So if a rocket doesn't go to Mars, it's definitely not going to affect your health. But if a good vaccine is not made, we can die. Today if we are sitting here, it's because of the vaccine. Today India has vaccinated, given almost 3 billion jabs, which is a very big number. So this is why this film was made, because I wanted the world to know the kind of greatest scientific achievement of independent India. मित्रों, अब तो फिल्म को देखने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। आप लोगों को स्मरण ही होगा कि मार्च 2023 में भीड़ नाम की एक फिल्म रिलीज की गई थी। ये फिल्म कहने को तो कोरोना काल की भारतीय परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर थे मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी घृणित एजेंडे से भरी हुई फिल्मों को बनाने वाले अनुभव सिन्हा। इस तरह की एक विशेष एजेंडे पर आधारित फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर से हम क्या आशा कर सकते हैं। भीड़ में जो वास्तविक रूप में दिखाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं दिखाया गया, बल्कि नक्सल प्रेम से लेकर जितना भी एजेंडा भरा जा सकता था, सब भरा गया था। और उसी समय से बड़ी अधीरता के साथ में द वैक्सीन वॉर की प्रतीक्षा की जा रही थी, ताकि झूठ और छल कपट से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य हम तक पहुंच सके। द वैक्सीन वॉर हमें सत्य दिखाएगी कि कैसे देश में कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई, कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाया
और इस फिल्म में हमें सत्य ही देखने को मिलेगा। भीड़ की तरह कोई एजेंडा इसमें नहीं छुपा हुआ होगा। इस बात का विश्वास हम सभी को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स वही हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को बनाया था। कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट करने वाले विवेक अग्निहोत्री सर इस फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। आप सोचिए, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की सच्चाई को दिखाना कोई आसान कार्य नहीं था। कश्मीर पर शिकारा और हैदर जैसी झूठ से भरी हुई कई घटिया फिल्में बन चुकी हैं। अब ऐसे में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के वास्तविक इतिहास को सामने लाना बहुत ही साहस का कार्य था और विवेक सर ने ये करके दिखाया। इसीलिए मुझे तो इस बात का विश्वास है कि कश्मीर फाइल्स की तरह द वैक्सीन वॉर भी हमारे सामने सच ही लाएगी। यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है फिल्म के अंदर। आप लोग भी उत्सुक हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वैसे 28 सितंबर को प्रभास की सालार भी रिलीज़ हो रही है, तो दोनों ही फिल्मों की एक टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन टक्कर तब कोई महत्व तो नहीं रखती जब जनता किसी का समर्थन करने के लिए आती है। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को जनता ने सपोर्ट किया था, उसी तरह से वैक्सीन वार को भी जनता अपना समर्थन अवश्य देगी। मित्रों, वीडियो अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।